Hello students, today we are on our fifth chapter of Indian economy, that is India's foreign trade. India's foreign trade topic earlier we have read in the very first chapter where we read about the इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. वहाँ पे भी आपके पास थोड़ा सा टॉपिक आया था कि मतलब कि कैसा था उस टाइम पे ट्रेड, बिकॉज वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन ट्रेड वी हैव टू डिवाइड अवर ट्रेड इन थ्री पार्ट्स. वन इज डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, सेकंड इज वॉल्यूम, कितना हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन किसके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड द थर्ड इज कॉम्पोजिशन, मतलब कि किस टाइप की जो हम गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास ये तीनों टॉपिक मेन है बेटा. जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस हमने जब किया था टॉपिक, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि on the in India's foreign trade on the eve of independence, little bit change there was. Direction, maximum export import was with British government, Britain. India suffered the colonial exploitation because they made our country the market of the raw material, so maximum export import was with Britain, England, ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है. सेकेंडली वॉल्यूम में भी आप यही बोल सकते हो कि मोर देन 50% एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ब्रिटेन, इंग्लैंड, उनकी तरफ से, और उन्होंने हमारी जो इंडिया को मार्केट ऑफ द रॉ मटेरियल बना दिया. हमारे कंट्री से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था, अनफिनिश्ड गुड्स जो थी वो इंपोर्ट होती थी. टैरिफ बैरियर्स भी गवर्नमेंट ने लगा रखे थे, बट टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ कोटास, उसमें भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर टैरिफ टैक्सेस लगे हुए थे जिनके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना बेनिफिट था, और उन्हीं चीज़ों के इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ बैरियर्स थे जिनके यहाँ पे आने से उनकी गुड्स को नुकसान होता था. सो इस तरीके से जो भी उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेड था बिफोर इंडिपेंडेंस, it was merely according to their own wish. And third is composition. Composition मतलब कि which type of the goods we were exporting and importing. ठीक है. Besides the, if we are talking about the export import, mostly raw material was exported and finished goods were imported. हमारे कंट्री से जितना भी रॉ मटेरियल था, रॉ जूट, कॉटन, ये चीज़ें जो थी वो एक्सपोर्ट होती थी, एंड फिनिश्ड गुड्स वर इम्पोर्टेड टू आवर कंट्री. सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, उसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो था वो बहुत ज़्यादा था. एक्सपोर्ट वाज ग्रेटर देन इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट हमेशा ट्रेड सरप्लस होता था बेटे उस टाइम पे. ट्रेड सरप्लस मीन्स उसे ट्रेड ऑफ विजिबल गुड्स. Trade of visible goods in this export was always more than imports. ठीक है. एक्सपोर्ट के लिए भी बेटे रॉ मटेरियल जो था वो हमारे कंट्री से जाता था, जिसकी वजह से हमारे कंट्री के जो हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम से उनकी आउटपुट डिस्ट्रॉय होगी. हैंडीक्राफ्ट्स, डिके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट, मेजर रीजन इज दिस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड competition with the foreign goods. These are the reasons for the decay of handicrafts and handlooms. On the eve of independence, our balance of trade was always surplus. The reason behind this was export was always greater than imports. That's why the balance of trade was always favorable to our Indian economy. In 46-47, excess of the trade over import was estimated near about 31 crores, and through in 47-48 the balance of trade shrunk to 14 crores only. ठीक है. By this way, if we are talking about the direction of the trade, it was largely confined that there were many restrictions on export and import of our country, because we were restricted to export our goods to the British government only, Britain only.
So that is why our Indian economy was so biggest source of raw material for their industries, and that is why India was made the market of raw material for them. And in composition, it also shows our backwardness in export and import, because we were merely exporting the raw material, and all the finished goods as well as technical goods, machineries, we were importing from the abroad. So which shows the backwardness of our Indian economy in the technical position, because our technical position was very backward. हमारे कंट्री में मशीनरीज वगैरह नहीं बनती थी, बट सारी की सारी मशीनरीज हम इंपोर्ट करते थे फॉरेन कंट्रीज से. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे बेटा कि पहले कैसा था और अब जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो कैसा है. नोटिसेबल चेंजेस आर हेयर. अगर ब्रीफ में बात करें तो फिर से हम तीनों पॉइंट्स को लेके चलेंगे. वो तीनों पॉइंट कौन से हैं? वॉल्यूम, composition and direction. And volume, according to volume, the trade volume. बड़े यहाँ पे इतनी लंबी डिटेल में आपको इतने डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है. हम सिर्फ एक पॉइंट है बेटे, जो उस पॉइंट को आपने लर्न करना है. वहाँ पे भी आपको बताया गया है, अंडर 5 year प्लान्स जो हमारा ट्रेड था इज राइजन फ्रॉम 6760 crores इन फर्स्ट प्लान. एंड मतलब कि इसको टाइम्स में ले लो आप. टाइम्स में कैसे, मतलब कि इतना डाटा याद करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. जैसे लिखा हुआ है ना, 3282 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है इन 12th 5 year प्लान. अगर फर्स्ट 5 year प्लान के साथ कंपेयर करें तो आज का जो हमारा ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड, इंक्रीज हो चुका है कितने टाइम्स? 3282 टाइम्स इट हैज़ इंक्रीज्ड. During this period, imports increased by 3612 times and exports increased by 2895 times. ये डाटा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कर लेना. और इसी के हिसाब से हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो पहले बहुत कम था, कंटिन्यूसली दैट इज़ इंक्रीजिंग. परसेंटेज काफ़ी राइज हो रहा है उसमें. ओवर टाइम एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है इंक्रीज होने से हमारा ग्लोबल शेयर तो डिक्लाइन हो चुका है. ग्लोबल शेयर डिक्लाइन क्यों हो चुका है? क्योंकि नाउ वी आर रिलेटेड टू नियर अबाउट ऑल द वर्ल्ड थ्रू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. आजकल हम लोग सारे कंट्रीज़ के साथ कंसर्न हैं. सो इंडिया ट्रेड जो ग्लोबल शेयर है दैट इज़ डिक्लाइंड, बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, इट इज़ वेरी इट्स आफ्टर द इनिशियल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड पोजीशन पे है इस टाइम पे. ठीक है, हमारे कंट्री में अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत ही अच्छे तरीके से सिग्निफिकेंटली हैज़ इंक्रीज्ड देन इंडियन इकोनॉमी ऑन द बिफोर इंडिपेंडेंस लगा लो या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लगाओ. Second is composition of foreign trade. Composition, which type of the goods we are exporting and importing, type of goods will include in the composition of foreign trade. In it, the very first point is decline in percentage share of agricultural export. Earlier we exported the goods which were agricultural items, but now agricultural items are डिक्लाइंस. इतना ज़्यादा बेटे हम उतना एक्सपोर्ट नहीं करते जितना पहले करते थे, बिकॉज नाउ ए डे वी आर ऑन द टारगेट ऑफ सेल्फ सफिशेंसी इन फूड ग्रेन्स. तो पहले डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के बाद इफ़ देयर इज सम सरप्लस देन वी कैन एक्सपोर्ट, बट हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशंस को है. द सेकेंड पॉइंट इज डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स. अर्लियर जो हमारे टी, जूट, कॉफ़ी, ये कन्वेंशनल गुड्स हैं जो पुराने टाइम में हम एक्सपोर्ट करते थे, बट आजकल भी एक्सपोर्ट तो करते हैं बट उतना नहीं जितना कि हम पहले एक्सपोर्ट करते थे. जो जैसे रेशम, ढाके की मलमल, कॉटन क्लोथ, ये कुछ जूट, कॉटन,
ये जो चीज़ें हम लोग पहले एक्सपोर्ट करते थे, आजकल उनकी फॉर्म चेंज हो चुकी है, ठीक है। ड्यू टू डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, डोमेस्टिक डिमांड फॉर द कन्वेंशनल आइटम्स is rising, so that is why these goods are consumed now inside the country, so export of these goods has declined. Next is increase in percentage share of manufactured goods. Earlier we exported only finished goods, raw material, and imported only finished goods, but nowadays this is totally changed. जहाँ हम पहले सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, अब हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं उनको भी एक्सपोर्ट करते हैं। प्लानिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से बेटे हमारे कंट्री में हम मशीनरी टेक्निकल गुड्स का इंपोर्ट करते हैं। टेक्निकल गुड्स के इंपोर्ट्स के साथ हम वो चीज़ें भी मैन्युफैक्चर करते हैं जो पहले हम इंपोर्ट करते थे। आजकल बल्कि उन चीज़ों को हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चर करके हम वो चीज़ें भी साइड बाय साइड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है इज़ टोटली चेंज्ड। इनमें अब हमारे कंट्री में स्टैटिकनेस या बैकवर्डनेस नहीं है, आजकल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर की जगह नाउ सेकेंडरी एंड टर्शरी बोथ द सेक्टर्स आर आल्सो पुटिंग द हैवी इंक्लूशन इन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। पहले जो था हमारे कंट्री में प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा रोल था, बट आज का सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर भी इनका रोल दिन पर दिन इंक्रीज होता जा रहा है। आफ्टर कंपोजिशन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन मीन्स टू से नाउ आवर ट्रेड इज टुवर्ड्स विच कंट्री, कहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं एंड कहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब ये टोटली चेंज हो चुका है आफ्टर 51। ड्यूरिंग द प्लानिंग टाइम हमने इन चीज़ों का जो डायरेक्शन है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। आवर ट्रेड पार्टनर्स आर नाउ द थ्रू आउट द वर्ल्ड। हमारी डोमेस्टिक जो मतलब कि जो डायरेक्शंस हैं पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ थी, ब्रिटेन की साथ थी, आजकल वो हमारी डायरेक्शंस टोटली चेंज हो चुकी हैं। प्रेजेंटली आवर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर आर UAE। पेट्रोलियम वगैरह बेटे हम बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे कंट्री में। हमारा चाइना के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर 2 साल पहले तक देखिए तो हमारा चाइना के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा था, बट आजकल ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, ठीक है। कोरोना की वजह से तो कुछ ज़्यादा ही इसके बैड इफ़ेक्ट्स पड़े हैं, चाइना के पूरे वर्ल्ड पे बैड इम्पैक्ट्स हैं। तो इस वजह से चाइना का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो शेयर है वो काफ़ी कम हो चुका है। USA, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, UK, जापान, बेल्जियम, इनके साथ हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर का ये हमारे ट्रेडिंग पार्टनर बन चुके हैं। इनके साथ हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बहुत अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्शन पैटर्न में अगर बात करें तो फॉरेन ट्रेड जो रिसेंटली ईयर में है UAE के साथ हमारा जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज्ड है। और जितना भी हम लोग वहाँ से मतलब कि इम्पोर्ट करते हैं, पहले तो मतलब कि ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा थी, बट आजकल जो 3rd पोजीशन पे हम स्लिप्ड टू 3rd पोजीशन। Notable feature of the direction pattern of India's foreign trade is that in the recent years, UAE has emerged as on leading trading partner. USA, which was our leading partner, वो नीचे चला जा चुका है 3rd पोजीशन पे, जबकि पहली पोजीशन पे पहले USA था और आजकल जो है उसकी पोजीशन 3rd बन चुकी है। USA का जो पार्ट था हमारा शेयर था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिकॉर्डेड 15.3%, जबकि UAE का 11.3%, चाइना का 3.7%, काफ़ी कम होता जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से बड़े ये काफ़ी आपको हर एक कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रेड रिलेशंस हमारे पास इसमें बताया हुआ है। और यहाँ पे मैं इतना ही बोलूँगी कि नाउ वी आर ग्लोबलाइज्ड। अवर इंडियन इकोनॉमी, इसमें जितनी रिस्ट्रिक्शंस पहले 1991 से पहले जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, लिबरलाइजेशन की वजह से
हमारी जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी वो काफ़ी कम हो चुकी है। बिल्कुल फ्री ट्रेड तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि ट्रेड इज़ स्टिल कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, बट जो लिमिट्स पहले फिक्स थी आज वो लिमिट्स काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। नाउ वी पीपल आर ग्लोबलाइज्ड, वी आर रिलेटेड टू ईच एंड एवरी कंट्री through with the help of World Trade Organization. We are now related to maximum countries, ठीक है। एंड 1991 अ ईयर ऑफ डिवाइड क्यों बोलते हैं बेटे, क्योंकि 1991 से पहले देयर वर सो मैनी restrictions on the foreign trade, there were so many restrictions on the import of goods, so many restrictions on the foreign direct investments. But in 1991, due to new economic policy, there were many changes in the export import volume. Restrictions were abolished in 1991. Government became liberalized towards each and every sphere in the domestic production as well as in the export and import, in foreign direct investment. सब कुछ लिबरलाइज हो गया था। जितनी पहले बेटे रिस्ट्रिक्शंस थी वो सारी लाइसेंस की रिस्ट्रिक्शंस थी, परमिट्स की रिस्ट्रिक्शंस थी, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग दिस टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। रिस्ट्रिक्शंस थी कुछ ही चीज़ों के ऊपर, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने लिमिट फिक्स की हुई थी। बट मतलब कि देखा जाए तो ये रिस्ट्रिक्शंस पहले से बहुत कम थी। एंड 1991 में हमारे कंट्री में इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी बनी थी। इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजीज विच वाज रिलेटेड टू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, जिसमें यह था कि इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम अब्रॉड वी शुड प्रोड्यूस द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट इन अवर ऑन कंट्री। बट शर्त ये है, कंडीशन ये है कि हम कंपेयर करेंगे कि जो चीज़ हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट हम अपने कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर कॉस्ट का कंपैरिजन हमने करना है। क्योंकि सपोज कर लो कोई चीज़ फॉरेन से हम मंगवा रहे हैं दैट इज़ ऑफ 10 lakhs, ठीक है, बट अगर उसी चीज़ को हम अपने घर में कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं तो दैट थिंग विल बी ऑफ 8,000 टू अस, 8 lakhs टू अस। तो इट मीन्स यहाँ पे इस चीज़ को हमारे डोमेस्टिक रीजन में प्रोड्यूस करने का फ़ायदा है। बट अगर वो चीज़ हम अपने कंट्री में प्रोड्यूस करने से हमें 12 lakhs का कॉस्ट पड़ रही है तो इट इज़ वेरी टफ, क्योंकि ये चीज़ हमें अपने कंट्री में प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट अपने कंट्री में हम बना सकते हैं, बट इसमें कोई ये बात नहीं है कि हम हर एक चीज़ का इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट अपने कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे, whether that is costlier to us or cheaper to us. We will compare the cost, that is the law of comparative cost. हम कॉस्ट को कंपेयर करेंगे कि फॉरेन से अगर वो चीज़ मंगवाते हैं तो वो चीज़ हमें कितने की पड़ती है, अगर वही चीज़ को हम अपने घर में प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी। आफ्टर मेकिंग द कंपैरिजन्स ऑफ द कॉस्ट देन वी कैन डेयर टू प्रोड्यूस दोज गुड्स इन अवर ऑन डोमेस्टिक एरियाज। So that is known as the inward looking strategies. Instead of importing the goods from abroad, we should make import substitute in our own country so that we can be self-sufficient, we can be self-dependent. तो इससे हमारी दूसरे countries के ऊपर dependency काफ़ी कम हो जाएगी। That is why this is known as the year of divide. Inward looking strategy हम अपने next lecture में करेंगे। Thank you and God bless you.